السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، كداب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب۔ محترم و مقرر سامعین اکرام، اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے بعد ہم تمام بھائیوں کو، سامعین کو دوبارہ اس درس کے پروگرام میں جمع اور اکٹھا فرمایا۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی بے شمار انعامات میں سے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی فضل اور توفیق جاری رہی تو یہ اس قرآن کا سلسلہ جو ہے انشاءاللہ تعالی اپنے عروج کے ساتھ مسلسل جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 10 تک کی بات مکمل ہو چکی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد آج کا جو درس ہے یہ پہلا درس ہے، اور حسب توقع اس طریقے سے رمضان کے علاوہ یہ درس اتوار مغرب بعد کا جو ٹائمنگ تھا اسی ٹائمنگ پہ چلے گا انشاءاللہ۔ آج کے درس میں سورہ آل عمران آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کی آیت کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 11 کے اندر بیان کیا کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا کہ آل فرعون کا حال رہا اور ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے۔ اصل میں اس آیت کا تعلق اوپر والی آیت سے جو آیت نمبر 10 گزر چکی ہے۔ اوپر والی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو اللہ نے کہا کہ ان کے اموال، مال کی جمع آتی ہے اموال اور ولد کی جمع آتی ہے اولاد، کچھ بھی اللہ سے ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور اسی حصے کا تعلق آیت نمبر 11 سے ہے کہ یہی حال جیسا کہ آل فرعون کا رہا۔ آل فرعون کی اولاد، یعنی جو فرعون کو خدا مانتی تھی، جو حکمراں مانتی تھی، جو فرعون کے لیے سب کچھ کرتی تھی، ان کا بھی یہی معاملہ تھا۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت انہیں عطا کر رکھی ہے یا اولاد، تو یہ ان کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے، ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ یہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گی۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک چیز آپ نوٹس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کے ساتھ اکثر اولاد کا ذکر کیا ہے۔ کہیں پر کہا اللہ نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ فتنہ کا معنی ہوتا ہے آزمائش۔ ایک فتنہ اردو والا جو ہوتا ہے جس میں فتنہ فساد ہوتا ہے، یعنی ہم کسی دوسرے کو دو لوگوں کے بیچ میں آ کر ان کو لڑوا دیں، یہ فتنہ ہے۔ حالات سازگار ہے تو ہم کو ناساز کر دیں،
ये सब फितरे में आता है। तो एक चीज आप देखिए कि अल्लाह ताला ने माल व दौलत के साथ साथ औलाद का जिक्र कुरान मजीद के मुख्तलिफ मकामात पर किया है। इससे क्या पता चलता है जमाने जाहिलियत में जब शरीयत मुकम्मल नहीं हुई थी, तो जमाने जाहिलियत में मुशरिकीन मक्का के अंदर बहुत सारी चीज़ों के मामले में तकब्बुर था, किब्र व गुरूर वो रखते थे। उनमें से एक चीज़ थी औलाद, और औलाद में भी एक चीज़ थी लड़का, यानी बनीन जिसको बोलते हैं। अरबी में लड़की के लिए बनात का लफ्ज़ आता है, फिर उसकी जमात ये बनात। और मुशरिकीन मक्का के अंदर तकब्बुर की एक चीज़ ये भी थी कि वो अपने आल औलाद पर बहुत फख्र किया करते थे। किसी के 4 बेटे हैं, किसी के 5 बेटे हैं, किसी के सिर्फ बेटे ही बेटे हैं, लड़कियां नहीं है, बेटियां नहीं हैं। तो ये भी किब्र और तकब्बुर का एक जरिया बनता था कि हमारे इतने बेटे तुम्हारे पास नहीं। एक चीज। दूसरी चीज ये कि मुशरिकीन मक्का जो थे, जो जमाने जाहिलियत में वो लड़कियों को पसंद नहीं करते। हालांकि देखिए कितनी कमजोरी की बात है कि शादी एक औरत ही से कर रहे हैं, निकाह जो है एक लड़की ही से कर रहे हैं, लेकिन उनको लड़की पसंद नहीं। यानी आप समझ रहे हैं मिजाज उनका मिजाज ये है कि बेटी की शक्ल में हमको लड़की पसंद नहीं, बतौर बेटी हमको लड़की पसंद है, बतौर बीवी पसंद है। ये उनके मिजाज को आप समझने की कोशिश कर, आप समझ रहे होंगे बात क्या है। ये मुशरिकीन मक्का का मामला था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 11 में कहा कदाब आले फिरऔन, यही हाल जैसा कि आले फिरऔन का रहा, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और जो उनसे पहले थे। यानी फिरौन का जो जमाना था उसमें मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, तो आले फिरौन से पहले भी एक जमाना था, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाना था, मिस्र का मामला था, और उसके पहले दीगर नबी थे या दीगर कौमें थी। वो लोग भी यही सोचते थे, ऐसा ही सोचते थे कि माल और औलाद जो है ये एक इंसान के लिए बहुत कीमती सरमाया है, और ये चीजें इनको अल्लाह के अजाब से बचा लेगी, ये सोच वो लोग रखते थे। आगे अल्लाह ने बयान किया कज़्ज़बू भी आयातिना, ये जो आले फिरौन और उनके पहले के लोग थे, इन्होंने हमारी आयत को झुठला दिया। यानी ऐसा है कि उनके दरमियान में जो नबी जाते थे, जिस तरह की सोच ये लोग रखते थे पहले की कौमें, तो उनमें भी जो नबी जाते थे वो नबी समझाते थे। अल्लाह की आयत का इनकार मत करने का मतलब ये हुआ कि आसमानी किताब तो 4 है, लेकिन जो दीगर नबी थे अय्यूब अलैहिस्सलाम, आपको नूह अलैहिस्सलाम, जिन पर किताब नाज़िल नहीं हुई, लेकिन उन पर किसी न किसी जरिए से तरीके से वही आती थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर जाते थे। तो उनको भी जब ये बात बताई जाती थी तो अल्लाह ने कहा कि वक़ज़्ज़बू भी आयातिना, उन्होंने हमारी आयत को, हमारी निशानियों को झुठला दिया। तो अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके गुनाहों की वजह से उनको पकड़ लिया। अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों की वजह से उनको पकड़ लिया। वल्लाहु शदीदुल इकाब, और अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त सजा वाला है, यानी सख्त सजा देने वाला है। देखिए यहाँ पे एक नुक्ता और है, अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ताला ने, ज़म मतलब होता है जाल नून, और बा मतलब होता है गुनाह। एक लफ्ज़ अरबी में गुनाह के लिए इस्म का लफ्ज़ आता है अलिफ सा मीम। उर्दू में इस्म का माना नाम होता है, जो छोटी सीन से होता है। अरबी में अलिफ सा, ता के बाद सा आता है, और मीम, इस्म माने होता है गुनाह, जम के माने भी होता है गुनाह। अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिक्र किया भी जुनूब, एक जमा कैसे का इस्तेमाल किया, जम की जमा आती है जुनूब। अल्लाह ताला ने उनकी गुनाहों की वजह से उनको पकड़ लिया। अब इसकी माने की गहराई को समझे कि अगर हमारी जिंदगी में नेकी भी है और बुराई भी है, तो हम बहुत ज्यादा अपने आप को ये झूठी तसल्ली दिलासा ना दे कि क्योंकि हम नेकी कर रहे हैं तो बुराई का कोई वैल्यू नहीं है हमारी जिंदगी में। ये बात समझिए, पिछली कौमों ने यही गलतियां की। उन्हें लगता था कि अगर हम बुराई कर रहे हैं तो क्या हुआ, नेकी भी तो हम कर रहे हैं, तो नेकी भारी हो जाएगी बुराई को। जबकि अल्लाह ताला ने एक मकाम पे कहा इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यआत, नेकियां बुराई को मिटा देती है। आप इस पहलू को गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन चीज किसको खत्म कर रही है। बुराई नेकी को मिटा रही है कि नेकी बुराई को मिटा रही है। मतलब बयान करने का मकसद ये है
कि अगर नेकी हमारी जिंदगी में नहीं रहा तो बुराई नहीं खत्म होगा। ठीक है, बात समझ रही है? हमारी जिंदगी में अगर नेकी नहीं रहा तो बुराई खत्म नहीं होगी। बुराई के खात्मे के लिए ये जरूरी है कि हम नेकी करें। एक ये माना निकला। दूसरा माना यह है कि बुराई को करने में मजा आता है बनिस्बत नेकी की। यानी अगर हम नेकी छोड़ दे तो ऑटोमेटिक हम बुराई बात समझ आ रही ना। जैसे नमाज हम लोगों पर फर्ज है, कभी हम सुस्ती का इजहार कर दें कि चलो जाने का मन नहीं। देखिए क्या खतरनाक चीज है बुराई। मतलब अभी ईशा का वक्त है और हम बिल्कुल ड्यूटी से आए हुए, ऑफिस से आए हुए, थके मानते हैं, बिस्तर पे भी खा कर लेटी रहे कि ईशा की अज़ान हो गई। हमने सुस्ती में ईशा की नमाज को छोड़ दिया, तो नमाज का छोड़ना गुनाह का बाइस है कि नहीं? नीयत हमारी दुरुस्त है, अल्लाह को नाराज करना हमारा मकसद नहीं है। लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने कैसे बुराई को मतलब आजमाइश के लिए हमारे सामने रखा हुआ है कि नमाज जैसे हम छोड़े ऑटोमेटिक हम गुनाह कर लिए, हमारे खाते में गुनाह लिख दिया गया। जैसे हमने नमाज को छोड़े गुनाह लिखा गया। हम गुनाह करने नहीं गए, हम गुनाह करना नहीं चाहते, गुनाह हमको पसंद नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों की जिंदगी में आजमाइश और इब्तिला को और हमारे लिए इम्तिहान को इस कदर रखे हुआ है कि जैसे हमने ये डिसाइड किया कि चलो कल फजर में जाएंगे तो ईशा तो हम पढ़ लेंगे वहां पे, तो उसी वक्त हम गुनहगार हो, उसी वक्त हम गुनहगार हैं। इन्नल हसनाता युज़हिबन सय्यआत, नेकियां बुराई को मिटा देती हैं। तो हमारे अंदर जो बुराई है या हमसे जो बुराई या गुनाह सरजद हुए, इनके खात्मे के लिए नेकी जरूरी है। तो हम नेकी को कभी ना छोड़े। एक चीज अब अल्लाह ने यहाँ पे जो कहा असल चीज जो है फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। किस चीज की वजह से? उनके गुनाहों की वजह से। अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से उनको पकड़ लिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे ये बात कह सकता था कि उनके कुफ्र की वजह से, उनके बुतलान यानी झुटलाने की वजह से, उनकी सरकशी की वजह से, पैगंबरों का इस्तेहज़ा और मजाक उड़ाने की वजह से अल्लाह ने एक वजह यहाँ बयान की कि इतनी तो बड़ी बड़ी वजूहात है। कुफ्र मतलब क्या? गुनहगारी है, अल्लाह को नहीं मानते। लेकिन अल्लाह ने जुनून का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया ताकि हमें ये बात समझ में आ जाए कि अगर जो हम सोच रहे हैं कि अगर हम गुनाह किए तो क्या वो नेकियां भी तो है, नेकियां भी तो है, क्या हुआ नेकी तो कर रहे हैं, तो नेकी तो गुनाह को मिटा देगी। इस नीयत से अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमारा कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। बात समझिए, ये अल्लाह ताला ने यहाँ बताने की कोशिश की है। जैसे होता है आजकल रमजान का महीना खत्म हो गया, अब सर्कस शैतान और जिन्नात जो है वो आज़ाद हो गए। जैसे ईद का चांद नजर आया, अल्लाह ने उनको छोड़ दिया, जो कैद किए गए थे। तो अब क्या है कि देखिए अब जो शादी ब्याह का माहौल है, इसी तरीके से नाच गाने का एहतमाम अब हमारे माशरे में शुरू हो गया। यानी जो एक महीना अपने आप को हम पाबंद किए हुए थे, तो अब वो पाबंदी खत्म हो गई। अब हम ये सोच रहे हैं कि चलो शादी का मौका है, थोड़ा हो गया तो हो गया, बाद में तो हम जुम्मा में पढ़ने ही जाएंगे, नमाज पढ़े करेंगे, रोजा रखबे करेंगे। ये सोच रहे हैं अगर हम, तो हमारा वो भी अमल कबूल नहीं हो जो नेक अमल करें। बुराई का मतलब क्या हो? बुराई को इस तरह समझिए कि बुराई आग है, आग की तरह है। अब आग को आप जितना आप बचना चाहेंगे उतना आपके लिए फायदा है कि हम आग को बहुत दूर का चिंगारी से बचने की कोशिश करें। आग तो बहुत दूर की बात है, चिंगारी से हम बचने की कोशिश करें, कहीं ऐसा ना हो वो चिंगारी हमारे घर को जलाए। ये गुनाह वैसे ही है। गुनाह इतनी खतरनाक चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे रोजमर्रा के गुनाहों की वजह से हमारी जिंदगी अजीरन बनी है। गुनाह की सिर्फ वजूहात है, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि गुनाह के साथ हम नेकी कर रहे हैं, और कभी भी दिन और रात एक नहीं हो सकती। बात समझ लीजिए, अभी रात है तो अभी दिन नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। कोई ताकत दिन नहीं ला सकती। दिन है तो रात नहीं हो सकती। अब दोनों को एक जगह हम जमा करेंगे तो सिस्टम जो है बिखर जाएगा। जो अल्लाह ताला ने कानून बनाया है वो कानून के खिलाफ काम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अल्लाह ताला ने कहा तो अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ताला ने उनको उनके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया। पकड़ने का मतलब सजा दी, अज़ाब में मुब्तला कर दिया। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला बड़े सख्त सजा देने वाला है। उसके बाद आयत नंबर 12 अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, कुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबूना व तुहशरुना इला जहन्नम व बि'सल मिआद। ऐ नबी आप काफिरों से कह दीजिए सतुग़लबूना, अन करीब तुम मगलूब किए जाओगे। उर्दू में एक लफ्ज़ आता है गालिब, एक आता है मगलूब। गालिब मतलब जो फाते हो जाए, जीत जाए, जिसका गलबा आ जाए दूसरों के ऊपर। मगलूब जो पस्त हो जाए, शिकस्त हो जाए, हार जाए। अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी आप काफिरों से कह दीजिए कि अनकरीब तुम मगलूब किए जाओगे। और ये यहाँ पर काफिर से मुराद
यहूद हैं, यहूदियों के बारे में अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की कि अनकरीब तुम लोग मगलूब किए जाओगे, वह तो शरून अला जहन्नम, और जहन्नम की तरफ या जहन्नम में तुम लोग जमा किए जाओगे, वह बीसल मिहाद, और ये जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है, बहुत बुरी जगह है। और ये वाक़या है खैबर से पहले का, जो जंग खैबर खैबर जो पता मुसलमानों को पता होती जंग खैबर में, उससे पहले जो मदीने के बड़े बड़े कबीले थे यहूदियों के, तो अल्लाह ने कहा कि तुम मगलूब किए जाओगे, और वही हुआ कि बनु कैनका और बनु नज़ीर जो है ये जिला वतन कर दिए गए, ये मतलब वहाँ से निकाल दिए गए। और उसके बाद खैबर में मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फतह से हमकिनार कर किया। तो ये जो है यहूदियों के मुतालिक अल्लाह ने कहा कि नबी कह दीजिए उनको। और यहाँ पर यहूदियों के जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो भी बहुत हैरान करने वाला लफ्ज़ है, कुल लिल्लज़ीना कफरू, कुफ्र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि नबी आप काफिरों से कह दीजिए, माना यहूदियों से कह दीजिए। तो इस ये भी एक बहुत बेहतरीन आयत है, खासकर हमारे वो नौजवान भाइयों के लिए जो खासकर यहूद और नसारा की मुमासलत इख्तियार करते हैं और ये दलील देते हैं कि वो भी तो अहले किताब है। देखिए अहले किताब का माना ये नहीं तो सही है, जैसे मुसलमान का माना ये नहीं तो सही है। तो जरूरी है कि मुसलमान है तो उसके सारे अमाल ठीक है, दुरुस्त है और बिल्कुल अल्लाह वाला है। तो मुसलमान हर बुराई कर रहा है, हम तो है मुसलमान, हमारे पास कुरान भी है, हमारे पास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी है, सब कुछ है। लेकिन हमारा रवैया देखें, हमारे बातचीत करने का तरीका और अंदाज देखें, लोगों के साथ मेल जोल का मामला देखें, हर तरह की बुराई में हम और आप मुलव्विस से, ये भी बहुत बड़ा अलमिया है हमारे और आपके लिए। तो ये दलील दी जाती है कि चूंकि पहले किताब है तो उनको भी किताब दी गई थी, यानी आसमानी किताब, और उनके यहाँ भी नबी आए हुए थे, तो उनकी हर चीज जो है बुरी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ उनको काफी कहा। अब सोचे कि अहले किताब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मर्जुल मौत होते हैं, आखिरी होता है मरने वाला है, तो मर्जुल मौत उसको कहते हैं, ऐसी मौत, ऐसा मर जिसमें आपका इंतकाल हो गया। तो जब थे तो आप कुछ मर्जुल मौत में यानी मौत से 2-3 दिन पहले कुछ अल्फाज आप कहते थे, बददुआ देते थे। उनमें से ये भी था कि अल्लाह ताला यहूद और नसारा को लानत भेजे उसके ऊपर, अल्लाह की लानत यहूद और नसारा के ऊपर। क्यों लानत हो? क्योंकि उन्होंने अपने नबी के कब्रों को सजदागाह बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दौर में चल रहे हैं, अब आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है, तो आपने जो चंद बातें आपकी जुबान पे निकाली हुई थी, तो एक बात ये भी थी कि अल्लाह ताला यहूद और नसारा के ऊपर लानत भेजे, क्योंकि उन्होंने अपने नबी के, अपने अंबिया के कब्रों को मसाजिद बना दिया, यानी सजदा करने की जगह बना दिया। तो यहूद और नसारा की मुमासलत या मुशाबियत कभी भी हमें इख्तियार ना करें। वो कौम है जो कभी भी मुसलमानों की नहीं, इनका मकसद है कि मुसलमानों को मिटाना, हालांकि कामयाब नहीं होंगे, लेकिन एक बदगुमानी में जी रहे हैं कि मुसलमानों को हम मार दें। आप देखिए ना कि कोई जानवर हम कुर्बानी करते हैं, अभी कुर्बानी का मौसम आने वाला भी है, तो जिस जानवर को हम खरीद के लाते हैं या अपने यहाँ पहले से पोस कर रखे रहते हैं, जब उसको कुर्बान करने जाते हैं तो हमको कितना दर्द होता है। हालांकि उसको हम खाने वाले हैं, उसको हम पकवान के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन जब तक वो ज़बा नहीं हुआ रहता है तो हमें बहुत उसके लिए हमदर्दी रहती है और बहुत तरस आता है कि बहुत से लोग तो देख ही नहीं पाते, वो हट जाते वहाँ से। एक फितरी चीज़ है कि जानवर के साथ हमारा ये मामला है, अगर किसी इंसान के साथ हो तो कितना ज़्यादा मामला होगा। लेकिन आज ही के ज़माने में यहूद नसारा को देख लें कि जिस दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर को हम फॉलो कर रहे हैं, वो कभी भी गाजा के ऊपर नहीं स्टेटमेंट दे रहे, वो दे ही नहीं सकते। जिसको हम बहुत बड़े स्कॉलर मानते हैं, आप उनसे कहेंगे सर एक अरे भाई कहाँ होता है सर, आपको हम फॉलो कर रहे हैं इस वजह से कि आप हक बोलते हैं, सच बोलते हैं, आप आइडियल है हमारे, आप यहाँ सच क्यों नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक मुसलमान को आप देख लें कि अगर गैर मुस्लिमों में कत्ले आम होगा तो मुसलमान का स्टेटमेंट आएगा, गलत है। बच्चों को नहीं मार सकते आप, औरतों को नहीं मार सकते आप, बुजुर्गों को नहीं मार सकते आप। एक मुसलमान बिना खौफ व खतर वो अपने बयान देगा और दे रहा है। यूक्रेन और रशिया के अंदर जो जंगी हुई उसमें मुसलमानों का बयान है कि कभी किसी के साथ जुल्म ना हो, ना इंसाफी ना हो, ना किसी को कत्ल ना किया जाए। लेकिन गाजा में जो बच्चे नन्हे मारे गए हैं, आज तक किसी बड़े स्कॉलर ने कहा, आवाज उठाई। तो हमको ये तय करना है कि हम किसको अपना हीरो माने, वो जो हक को हक कहने की ताकत रखता हो या वो जो हक पर चुप्पी रखने की ताकत रखता है। वो सवाल है जो मैं अपने आप से पूछनी चाहिए। किसी का बयान नहीं आ रहा, कोई हरकत नहीं, पूरी दुनिया खामोश, चाहे यूएन हो, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, चाहे खुद हमारे इस्लामिक तंजीम ताउन हो, सब के सब खामोश हैं। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो राजदारी नबी थे हुज़ैफा बिन यमान,
उनको अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ मुनाफिकों की लिस्ट दी। सोचे कि नबी के जमाने में मुनाफिक, नबी के जमाने में आपकी जिंदगी में ऐसे मुनाफिक थे जो मुसलमानों का रूप धारण करके मुसलमानों की सफों में घुसे हुए थे। अल्लाह के नबी जानते थे, अल्लाह के नबी ने अपने राजदार को बता दिया, किनको, हुज़ैफा बिन यमान को, कि कोई जरूरी है कि कोई दाढ़ी टोपी रखे हुए हमारे सफों में रह रहा है, हमारी बातें दो चार कर दे रहे तो हमारा हम नवा, कोई जरूरी है, जरूरी नहीं हो सकता है हमारे सफों में से लोग भरे हुए हैं जो हमारी नुमाइंदगी की तो बात करते हैं कि असल में वो हम हमारी तरक्की नहीं चाहते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी यहूद के बारे में बयान किया कि ए नबी आप उनसे कह दीजिए कि तुम मगलूब किए जाओगे। और खैबर के मौके पर यही मामला हुआ, बनु कैनुका और बनु कुरैज़ा जो है ये जिला वतन कर दिए गए और बनु नज़ीर जो है कत्ल किए गए और उसके बाद खैबर फतह हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो नक्शा यहाँ पर खींचा। आगे अल्लाह ने कहा कद काना लकुम आयतुन फी फिअतैनिल तक़ता, तहकीक के तुम्हारे लिए दो ग्रुपों में, दो ग्रोहों में जो भिड़ंत हुई, जो लड़ाई हुई, उसमें बहुत सारी निशानियां हैं, उसमें बहुत सारी निशानियां हैं। तो कातिलु फी सबीलिल्लाह, दो जमात जो आपस में लड़ रही थी, तो कातिलु फी सबीलिल्लाह, उनमें से एक जमात अल्लाह के लिए लड़ रही थी, अल्लाह के रास्ते में लड़ रही थी। वह उखरा काफिरतुन, और दूसरी जो जमात थी वो काफिर थी। यराउनहुम मिस्लहिम रअल ऐन, वो उन्हें अपनी आंखों से अपने से दोगुना देख रहे थे। तो समझ में वाली बात, ये असल में आयत है जंग बदर के ताल्लुक से। जंग बदर जो लड़ी गई, आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद मुसलमानों और काफिरों में जो जंग लड़ी, पहली जंग है वो पहली जंग थी जो रमजान के महीने में सन 2 हिजरी में लड़ी गई। सहाबा नए नए सहाबा थे जो शिर्क और कुफ्र से निकल कर एक अल्लाह की इबादत की तरफ आए थे और उनका ईमान इतना मजबूत था कि वो आते ही आते रमजान के महीने में जंग लड़ रहे। सोचिए, अभी जैसे गर्मी पड़ जाती है तो हम लोग मौलवी साहब से पूछते हैं कि क्या हम ड्यूटी कर रहे हैं और आग वाला काम है तो हम रोजा छोड़ दें। सोचिए, वो सहाबा नए नए थे, हम लोग तो प्रैक्टिस है 30 साल से 25 साल से 30 साल से अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रख रहे हैं, तो नए सहाबा थे। लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि अल्लाह के नबी जंग लड़नी है तो रोजा छोड़ देते हैं, बाद में पूरा कर लेंगे। सोचिए, जिंदगी और मौत के वहां पर फैसला हुआ जंग बदर। जंग बदर में क्या हुआ कि देखिए अल्लाह ताला ने कैसे मुसलमानों की मदद की। हम तरह तरह की बातें सुनते रहते हैं कि जंग बदर में ऐसे हुआ वैसे हुआ। अब ये हकीकत देखिए अल्लाह ने कुरान में क्या कहा। अल्लाह ने कहा कि तहकीक के दो जमात जो आपस में लड़ रही थी तुम्हारे लिए निशानी है। एक जमात तो कातिल फी सबीलिल्लाह, एक जमात अल्लाह के रास्ते में लड़ रही थी। व उखरा काफिरतुन, अब दूसरी जमात काफिर थी, यानी एक तरफ सहाबा की जमात थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, दूसरी तरफ कुफार मक्का थे। दो जमात थी, एक जो अल्लाह के लड़ रही थी और एक जो है अपनी खुदगर्ज की लड़ाई लड़ रही थी। अल्लाह ने कहा यराउनहुम मिस्लहिम रअल ऐन, वो अपनी आंखों से इन्हें दुगुना देख रहे थे। मतलब अल्लाह ताला ने ऐसी मदद की मुसलमानों की कि मुसलमानों की तादाद जंग बदर में कितनी थी? 313 थी और उनकी तादाद करीब करीब 1000 से ऊपर ही थी, नीचे नहीं थी। अल्लाह ने क्या किया, दोनों जमात को, मुसलमानों को भी और काफिरों को भी, अल्लाह ने क्या किया कि जिनकी जो तादाद थी, जिनकी, जैसे हम मुसलमान हैं तो हमारी तादाद हमको मालूम है 313 हम हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारे आंखों से उनको दिखलाया कि वो 626 है। 313 का डबल कितना हुआ? 626। तो हम मुसलमान हैं तो हम देख रहे हैं कि नहीं हम 313 है, हमारी तादाद मालूम है, हम अपनी तादाद को डबल देख रहे हैं अपोजिशन के लिए। ये उसका अल्लाह ने यहाँ बयान किया, उनकी तादाद को डबल नहीं, ये ना समझो। हम मुसलमान हैं तो हम लोगों को पता है कि हम 313 हैं, तो 313 जो फौज थी जंग बदर के मैदान में, वो 313 का डबल करेंगे तो 626। हमको काफिर नजर आ रहे थे 626, ठीक है। काफिर जो है वहां उस तरफ है, तो उनकी तादाद कितनी थी? 1000 मान के चलिए, 1000। तो वो मुसलमानों कितना दिख रहे थे? 2000। ये 2000 अल्लाह ने दिखाया कि मुसलमानों की तादाद 2000 है। अल्लाह ने कहा वो उन्हें अपनी नजरों से दुगुना देख रहे थे। काफिर देख रहे हैं, मुसलमान 2000 है, हम देखिए 1000 है। ये मकसद अल्लाह ने क्यों किया? अल्लाह ताला काफिरों के दिल में मुसलमानों का खौफ बैठाना चाहता है, डर के देखकर। क्या हमको तो खबर हुई कि मोहम्मद के साथी तो बहुत कम है। अब वो आपस में जो बड़े बड़े मक्का के सरदार थे, उतबा था, शैबा था और भी अबू जहल वगैरह, वो डिस्कशन भी कर रहे हैं आपस में कि हमको खबर थी कि वो तो बहुत कम है, यहाँ तो 2000 फौज है, उनको दिखाई दे रहा है 2000, सोच नहीं रहे, गुमान नहीं कर रहे हैं, उनको 2000 फौज दिखाई दे रहा है। मुसलमानों को कितना दिखाई दे रहा है?
626। तो ऐसे ही मुसलमानों का हौसला बढ़ गया। देखिए अल्लाह ताला कैसे कैसे मदद करता है। अगर हम अल्लाह का काम करेंगे, अल्लाह ने जो तरीका और जो सलीका हमें आपको दिया है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह को मालूम है कि मुझे अपने बंदे की मदद कैसे करनी है। सोचे, काफिर देख रहे मुसलमानों को 2000 की कुर्सी करा दे 1000 की, मुसलमान काफिर को देख रहे 626 की कुर्सी करा 313 थी। उसके बाद अल्लाह ने बयान किया वल्लाहु युय्यिदुन बिनस्रिही, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता मैं यशा जिसे चाहता है अपनी मदद से उसको कवि बना देता है, ताकतवर बना देता है। वल्लाहु युय्यिदु बिनस्रिही मैं यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपनी नुसरत करके अपनी मदद करके उसको मजबूत बना देता है। इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, बेशक इसमें यानी इस जंग में इस लड़ाई में आंख वालों के लिए इबरत है। आंख वालों के लिए इबरत है, इसका मतलब समझे। सभी तो आंख वाले हैं, सवाल ये कि कौन यहाँ पर अंधा है? सभी आंख वाले हैं, लेकिन कोई जरूरी है कि हम आंख है तो अंधा नहीं है? तो जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। जैसे हम आंख वाले हैं और अल्लाह ने हमको नवाज रखा है, लेकिन हमको गरीब नजर नहीं आ रहा है, सबका खैर आपकी है, हम तो है आंख वाले। किसी ने कहा कि अंधा किसको कहते हैं? तो जवाब दिया गया कि अंधा वो है जिसको अपने मातहत लोग नजर ना है, वो अंधा है। आंख तो है लेकिन वो अंधा है। अल्लाह ने यही बात कहा कि जो अकलमंद होंगे, आंख वाले मतलब अकलमंद होंगे, समझदार होंगे, उनके लिए इबरत है। आज जो ना समझ होंगे उसके लिए कोई इबरत की बात ही नहीं। वो इसी तरह हवा में उड़ा देंगे तो अल्लाह की मदद आ गई, वो सहाबा की मदद आ गई, हमारे साथ क्या हमारे साथ भी हो सकता है। अल्लाह क्या हमारी मदद नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, कई तरीके से कर रहा है, हमें बस एहसास होना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ने कहा ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मरगूब चीज़ों की मोहब्बत लोगों के लिए मुज़य्यन कर दी गई। हुब्बुश शहवात, मरगूब चीज़ों की मोहब्बत, लिन्नास लोगों के लिए, ज़ुय्यिना मुज़य्यन कर दी गई, मुज़य्यन कर दी गई। जैसे कि मिनन निसा औरतें, वल बनीन औलाद, वल कनातीरिल मुकंतरति मिनज़ ज़हब वल फ़िज़्ज़ा सोने और चांदी के जमा किए हुए खजाने, वल खैल मुसव्वमती निशानदार घोड़े, वल अनआम चौपाए, वल हर्स और खेतियां। अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुछ चीज़ों का जिक्र फरमाया। और सबसे पहले समझे कि मरगूब चीज़ों की मोहब्बत किसको होती है। यहाँ पे एक लफ्ज है शहवात। शहवात असल में अरबी की, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है शहवात। शहवात अरबी में शहवात असल में मुश्तहियात के माना है। मुश्तहियात कहते हैं कि वो हर वो चीज़ जो इंसानी फितरत उसको अच्छा समझे, जो हमारी फितरत में उसको अच्छा माना जाए। फितरत क्या है? ऑटोमेटिक वाली चीज़ है। जैसे नींद, ये हमारे शौक से नहीं आता है, ये ऑटोमेटिक होगा। भूख, ये हमारे शौक से नहीं है, ठीक खाना हजम होकर भूख लग जाए, ये फितरी चीज़ है। थकावट, ये शौक वाली चीज़ नहीं है कि चलो आज थक के दिखाते हैं, नहीं, हम खुद काम करेंगे थक जाएंगे। बस समझ नहीं ना, वो चीज़ें ऑटोमेटिक जो फितरी चीज़ है, तबई जिसको कहते हैं, तबीयत जिसको अच्छा या बुरा समझे। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत की कुछ तबीयत के बारे में यहाँ पर जिक्र किया कि तबीयती तौर पर, तबीयती तौर पर मर्द हो या औरत उसको अच्छा समझते हैं। जैसे अल्लाह ने साफ साफ कहा, यहाँ कोई बुराई और गंदी बात नहीं है। अल्लाह ने क्लियरली कहा, यहाँ पर अल्लाह ने क्या कहा? मरगूब चीज़ों की मोहब्बत दुनिया के लिए मुज़य्यन कर दी गई है। जैसे हम मुसलमान हैं तो अल्लाह ताला ने इस कायनात को, इस दुनिया को बहुत मुज़य्यन करके हमारे सामने रखा है। वजह क्या है? एग्जाम, इम्तिहान। इम्तिहान लेगा अल्लाह ताला कि वो दुनिया की मोहब्बत में जा रहा है कि अल्लाह की मोहब्बत में जा रहा है। समझा नहीं? जैसे ईद का चांद नजर आया, चांद नजर आते ही अब हमारा एक मिजाज हो गया कि हम बाजार में दौड़ने लग गए। वही ईद के चांद में मगरिब की भी अजान हुई, वही ईद के चांद में ईशा की भी अजान हुई, तो बाजार में कितने मुसलमान थे और मस्जिद में कितने मुसलमान? यही असल इम्तिहान है, यही असल इम्तिहान है। रमजान का चांद नजर आता है, बाजार सिकुड़ जाकर मस्जिद भर जाती है। लेकिन एक ही महीना में क्या हो गया कि अल्लाह की मोहब्बत पर दुनिया की मोहब्बत गालिब आ गई। इसीलिए अल्लाह ने कहा मरबूत चीज़ों की मोहब्बत दुनिया के लिए, दुनिया वालों के लिए मुज़य्यन कर दी गई। अब देखिए शहवात के माना ये है कि तबई तौर पर यानी तबीयत जिसको पसंद करे। अब देखिए हमारी तबीयत क्या क्या पसंद करती है। अल्लाह ने कहा मिनन निसाई, औरतें, हमारी तबीयत क्या है? हम चाहते हैं कि औरतें हमारे पास हमेशा रहे, उनका फायदा उठाते हैं। ये हमारी तभी चीज़ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।
اور اگر ہم اس کو الٹا اپوزٹ لے جائیں عورتوں کے لیے، تو اللہ نے یہ بیان کیا کہ مرغوب چیزوں کی محبت اسلامی بہنوں کے لیے اللہ نے مزین کر دیا، تو عورتیں مردوں کو پسند کرتی ہیں کہ نہیں؟ یہ طبی چیز ہے، طبیعت کو مات دے کر نہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی جس سے ہمارے لیجیے اس میں تو کچھ لوگ شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے، یا جو شادی شدہ نہیں بھی ہے، طبیعت چاہ رہی ہے کہ اس لڑکی سے ہم تعلقات قائم کریں، لیکن اللہ کا خوف ہم سامنے لاتے ہوئے طبیعت کی قربانی ہوگا نہیں. یعنی طبیعت میں ہے کہ ہمارا رجحان عورتوں کی طرف ہو، لڑکیوں کی طرف. اللہ نے یہاں ذکر کیا من النساء کہ عورتوں میں سے، تو ہم اس کو انکار کر رہے ہیں. پھر اللہ نے کہا استعمال کو بنی، دیکھیں یہاں پر بھی اللہ نے مال کا ذکر نہیں کیا، لیکن بنی مطلب ہوتا ہے بیٹے. طبعی طور پر ہم بیٹوں کو پسند کرتے ہیں. وہ دور تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہ جاہلیت کا زمانہ تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو بتلائے کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں. اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد انشاءاللہ دوبارہ شروع کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اللہ رب العالمین نے عورتوں کے بعد بیٹوں کا ذکر کیا. بیٹی بھی جو ہے طبعی طور پر انسان اس کو پسند کرتا ہے، بیٹی کو پسند نہیں کرتا. جاہلیت کے بعد بھی پھر ہم جاہلیت میں آ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول آئیں محنت سے سمجھائیں. لیکن آج اگر 3 4 5 کسی کی بیٹی ہو جائے تو اس کا رنگت دیکھیں، اور رنگت تو اگر وہ ہمت کر بھی لیتا ہے تو سماج والے اس کی ہمت کو توڑ دیتے ہیں، معاشرہ ان کی ہمت کو. تو وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے، علم نہیں ہے ہمارے پاس صحیح طور پر. پھر اللہ نے کہا کہ سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے یہ بھی طبعی طور پر انسان پسند کرتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے کہا نشاندار گھوڑے، عرب جو ہے گھوڑے کے بڑے شوقین ہوا کرتے تھے، ان کا ذکر کیا گیا ہے. والانعام چوپائے، اگر کوئی دیہات کا آدمی ہے اور بہت زیادہ ان کے پاس جیسے کھٹان ٹائپ کا ہوتا ہے نا، بھینس ہے دودھ دینے والی، گائے ہے دودھ دینے والی، جہاں جتنے والے بیل ہے کافی تعداد میں، یہ بھی انسان کی طبعی طور پر اس کو پسند کرتا ہے انسان. پھر آگے اللہ نے کہا والحرث، اور کھیتیاں، جیسا کہتے ہیں نا ہمارے گاؤں میں کئی بیگھہ کھیت ہے، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ طبعی طور پر فخر کرنے والی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، اور بتا دیا گیا کن کن چیزوں کو انسان طبعی طور پر پسند کرتا ہے. اب اس کے بعد اللہ نے کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی کے سامان ہیں، ان چیزوں سے آخرت میں کچھ نہیں بنے گا. اللہ نے کہہ دیا، اس کے بعد ہی کہہ دیا اللہ نے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تمام کی تمام چیزیں دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. واللہ عنده حسن المآب، اور لوٹنے کے اعتبار سے بہترین جگہ اللہ کے پاس ہے. لوٹ کے تو اللہ کے پاس جانا ہے، جب اللہ کے پاس لوٹ کے جائیں گے تو وہاں تو حساب کتاب ہوگا نا، اس کے بعد جنت ملے گی. ایسے تھوڑا بہت چلے گئے جنت مل گئی. تو یہ چیزیں اگر ہمارے پاس ہیں تو اس کو فی سبیل اللہ ہم خرچ کر کے اللہ کے یہاں بہترین جگہ بنا لیں. نہیں ہے تو چاہت نہیں رکھیں کہ ہم کو یہ مل جائے، ہم کو یہ مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے فجر کی نماز کے بعد کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک، میں تجھ سے مانگتا ہوں علما نافعا، ایسا تو مجھے علم دے جو نفع پہنچائے، رزقا طیبا، حلال رزق دے، پاکیزہ روزی دے، وعملا متقبلا، اور وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس کو تو قبول کرتا ہے. کہ اللہ رسول نے نہیں کہا کہ مجھے اتنی دولت دے دے، میری 11 بیویاں ہیں، کیسے ان کی پرورش ہوگی، کیسے ان کے پالن پوشن کا معاملہ ہوگا. کبھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہوتی تھی وہ بہت سوچنے والی دعا ہوتی تھی، غور کرنے والی. کہ آپ نے زیادتی کی کبھی دعا نہیں کی، آپ نے بلکہ برکت کی دعا کی. زیادہ نہیں چاہیے، اللہ اتنا دے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں، تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ رہوں. اب اللہ پسند کرے گا تو آپ کو اتنا زیادہ دے دے گا کہ آپ کو رکھ نہیں پائیں گے. اس کے بعد اللہ نے بیان کیا آیت نمبر 15 کے اندر قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ. اے نبی کہہ دیجئے کیا میں تم کو اس سے بھی بہتر چیزوں کی خبر نہ دوں؟ وہ یہ ہے کہ جو لوگ تقوی والے ہیں ان کے رب کے پاس ایسے جنات یعنی باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، ان کے لیے جنت میں نیک بھی پاکیزہ بیویاں بھی ہیں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی بھی ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے. پاکیزہ بیوی سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی عورتوں کو جو حیض و نفاس کی حاجت ہے، جنت کی عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، اس سے وہ پاک رہیں گے. آگے آیت نمبر 16 میں اللہ نے کہا الذین یقولون ربنا اننا آمنا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا،
तो हमारे गुनाहों को बख्श दे। यहाँ वही है जम जमा आती जुनूब, जम मतलब गुनाह, उसकी वाहिद है, उसकी जमा जुनूब आती है। फगफिर लना जुनूबना, तो हमारे गुनाहों को बख्श दे, वकीना अज़ाब अन्नार, और हमें जहन्नम के आग से बचाए, जहन्नम की आग से बचाए। फिर आयत नंबर 17 में अल्लाह ने कहा अस्साबिरीना वस्सादिकीना, जो लोग कहते हैं कि आए हमारे रब हम ईमान लाए, वही लोग कहते हैं कि जो सब्र करने वाले हैं, वस्सादिकीना सच बोलने वाले हैं, वलकानितीना फर्माबरदार हैं, वलमुनफिकीना अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले हैं, वलमुस्तगफिरीना बिल असहार, और पिछली रातों में मगफरत तलब करने वाले हैं, यानी बख्शिश तलब करने वाले हैं। देखिए इन सब दुआओं में एक बात मैं बता दूं कि चूंकि बहुत सी औरतें या लड़कियां भी जो है ऑनलाइन है, तो उनको लगता होगा कि सिर्फ मुजक्कर का सेगा इस्तेमाल हो रहा है, यानी सच बोलने वाले, सच बोलने वाली का लफ्ज़ नहीं आ रहा है। इसी तरह से आपको ईमान लाने वाले का जिक्र नहीं हो रहा है। इसी तरीके से सब्र करने वाली का जिक्र नहीं हो रहा है। तो उनको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ने इस माने में दोनों को मुराद दिया है। बज़ाहिर तौर पे मुजक्कर का सेगा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मुराद मुजक्कर और मुन्नत यानी मर्द और औरत पूरी कौम है, पूरी उम्मत मुस्लिमा है, इससे इस्तिस्ना नहीं। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा शहीद अल्लाह, अल्लाह ताला ने गवाही दी, अन्नहु क्या गवाही दी कि ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई माबूद मगर वही। अल्लाह खुद अपनी वहदानियत की गवाही दे रहा है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी, एक गवाही हम और आप दे या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा दे, तो उतना वजनदार नहीं जितना खुद अल्लाह ही कह रहा है। शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ, के अल्लाह ने गवाही दिया कि नहीं है कोई माबूद मगर वही, वल मलाइकतु, और फरिश्तों ने गवाही दी, व उलुल इल्म, और अहले इल्म ने गवाही दी। अहले इल्म से मुराद वो उलमाए हक जो आपको बता रहे हैं कि अल्लाह एक है और एक के अलावा कोई नहीं। कायम बिल किस्त, वल्लाह अदल इंसाफ को कायम करने वाला है। ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम, नहीं है कोई माबूद मगर वही जो गालिब और हिकमत वाला है। उसके बाद अल्लाह ने आयत नंबर 19 में कहा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक कोई दिन अगर पसंदीदा है तो कौन है, इस्लाम। यानी अल्लाह ने बतलाकर सारे दीगर अदियान को मतलब कि बातिल करार दे दिया। कोई दीगर दिन है, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो या बुद्धिज्म हो, जितने भी चीज हैं वो सब बातिल हैं। हक ये है कि अल्लाह सिर्फ इस्लाम को पसंद करता है। जो मुसलमान है इस्लाम को मानता है, अल्लाह उसको पसंद करता है। इस्लाम के अलावा कोई दिन अल्लाह पसंद नहीं करता। और कुरान में है वयब्तगी गैर इस्लाम दीना, अगर कोई इस्लाम के अलावा दूसरा दिन तलाश करेगा फलन युक़बल मिन्हु, तो उससे क्या है, कबूल नहीं किया जाएगा। वह मिनल खासिरीन, और वो घाटा उठाने वालों में से हो जाएगा, और वो घाटा उठाने वालों में से हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नुक्ता में बयान करता चलूँ कि इस्लाम को छोड़कर जो हमारी बहनें गैर मजहब में जा रही हैं, उनको पता होना चाहिए कि अल्लाह इस्लाम ही को पसंद करता है, इस्लाम के अलावा किसी दीन को पसंद नहीं करता। जैसे आजकल दुनिया में चलता है ना कि प्यार और मोहब्बत की कोई मजहब नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला इन चीज़ों को नहीं मानता। शरीयत इस्लामिया इन चीज़ों को नहीं मानती। अल्लाह उन्हीं चीज़ को मानता है कि जो मुस्लिम है, इस्लाम के ऊपर है, जिसकी मौत इस्लाम की हालत में हो रही है, अल्लाह उसको पसंद करेगा, अल्लाह उसको पसंद करेगा। और मरने से पहले अल्लाह ना करे अगर कोई मुर्तद हो गई, जैसा कि आजकल हमारी बहनें मुर्तद हो रही हैं, तो अल्लाह उसको पसंद नहीं करेगा, वो जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि उनका खात्मा जो है, उनका खात्मा इस्लाम पर नहीं हुआ, उनकी मौत इस्लाम पर नहीं हुई। तो कमाल ये नहीं है कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं, कमाल ये है कि मुसलमान हम मरे। कमाल ये है कि हम मुसलमान होकर मरे। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जैसे हम सबको मुसलमान बनाया है, हमारा खात्मा भी इस्लाम के हालत में है। आमीन या रब्बल आलमीन। उसके बाद अल्लाह ने कहा मख्तलफल लज़ीना उतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम। अल्लाह ने क्या कहा कि और अहले किताब ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद आपसी सरकशी और हसद की बुनियाद पर इख्तिलाफ किया। अहले किताब ने इख्तिलाफ किया कि नहीं मूसा अलैहिस्सलाम थे यहूद में, हम यहूदी हैं, ये दिन अल्लाह को पसंदीदा है। ईसाई ने कहा कि नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम आए थे हमारे दिन में, तो ईसाई मजहब अल्लाह को पसंद है। उन्होंने कहा नहीं, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ईसा अलैहिस्सलाम भी इस्लाम लेकर आए थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी इस्लाम को लेकर आए थे, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्लाम को लेकर आए थे। तुमने तो मूसा को नबी के बजाय खुदा बना लिया, ईसा अलैहिस्सलाम को नबी के बजाय तुमने खुदा बना लिया, और मूसा को अल्लाह का बेटा कह दिया, ईसा को अल्लाह का बेटा कह दिया। ये सारी चीजें तुम्हारी गड़बड़ियां थी, जबकि वो लोग भी इस्लाम लेकर आए। और आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल उस पर अल्लाह ने कहा वमन यकफुर बिआयातिल्लाह, और जो कोई भी अल्लाह की आयत का इनकार करेगा फइन्नल्लाह सरीउल हिसाब, तो बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है, अल्लाह ताला जल्द से जल्द हिसाब लेगा। आखिरी आयत जो आज के दर्स की है, अल्लाह ने कहा फाइन हाजू का, अगर फिर भी ये आपसे हुज्जत करे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, सब कुछ होने के बावजूद,
जैसे आजकल यहूदी यहूदी क्यों मार रहे हैं गाजा के मुसलमानों को? यहूदियों का कहने का मकसद ये है कि हम अल्लाह के महबूब हैं, है ना। बनी इसराइल के बारे में कहा अन्नी फज़लतुकुम अलल आलमीन, हमने तुमको तमाम जहान वालों को फजीलत दे रखी थी, है नहीं थी, पहले तुम फजीलत वाले थे, लेकिन जैसे तुमने अपने पैगंबरों के साथ सुलूक किया अल्लाह ने इस ओहदे से तुमको हटा दिया। लेकिन ये आज भी कह रहे हैं कि अल्लाह के बरगुदीदा बंदे हम ही हैं। तो अगर इसके बावजूद भी आपसे लड़ रहे हैं कि नहीं इस्लाम अल्लाह को पसंद नहीं, यहूदी अल्लाह को पसंद है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फाइन हाथ झुका, अगर फिर भी ये तुमसे आप नबी आपसे हुज्जत करे फकुल, तो आप कह दीजिए असलम तो वजह लिल्लाहि व मन इत्तबानी, मैं और जो मेरी इत्तिबा करने वाले हैं हम अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम कर दें। आप उनसे जो हुज्जत ना करें, तो आगे कह दें कि देखिए भाई इस्लाम अच्छा दिन नहीं है, अच्छा दिन ये है मेरे जिस पर हम हैं, जिस पर हम कायम हैं, आप उनको हुज्जत मत करिए। आप एक देखो मैं और जो मेरे मानने वाले, मेरे घर वाले, अहल वयात, दोस्त अहबाब, हम सब अल्लाह के हुक्म के सामने अपने सर को झुकाते हैं, सर तस्लीम खम करते हैं। उसके बाद अल्लाह ने कहा वकुल लिल्लज़ीना उतुल किताब, ऐ नबी आप अहले किताब से कह दीजिए, वल उम्मीना और अनपढ़ लोगों से कह दीजिए, वही अनपढ़ के मुराद अहले किताब है, यहूद नसारा या कुफार मक्का भी हो सकते हैं, जो जानबूझकर अनजान बनते थे, इल्म आ जाने के बावजूद इल्म को नहीं पहचानते थे। आप उनसे कह दीजिए कि फ़इन अस्लमू, अगर वो इताअत करें, फ़क़द इह्तदौ, तो यकीनन वो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। व इन तवल्लु, और अगर ये मुंह फेर ले, पीठ फेर ले, फ़इन्नमा अलैकल बलाग, तो आपके ऊपर सिर्फ पहुंचाना है। ये भी एक नुक्ता देखें क्या होता है कि हम किसी को जब तबलीग करते हैं तो एकदम ये सोच कर जाते हैं कि खुद हाथों पकड़ के लाकर नमाज पढ़वाई देना, चाहे पढ़े चला चलो पढ़ो, टीचर पढ़ो, हमारा काम है पहुंचा देना। हम यहाँ पे अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने कहा कि अगर वो इताअत करे तो यकीनन हिदायत याफ्ता हो जाएगी। यानी जैसे हमारे पास कोई आया, भाई जन आप नमाज पढ़ और बोलकर चले गए, हमें लगा कि हाँ भैया मुसलमान नमाज पढ़ना चाहिए, तो हमने नमाज शुरू कर दी। तो अल्लाह क्या कह रहा है, अगर खुद इताअत करे अल्लाह उनको हिदायत याफ्ता कर देगा, यानी उनको तौफीक देगा नमाज पढ़ने की, रोजा रखने की, नेकी करने की। और अगर वो इताअत ना करे, वह इन तवल्लु, मतलब पीठ फेर ले, पीछे हट जाए, कोई समझा रहा है समझ नहीं रहे हैं, तो अल्लाह ने कहा फइन्नमा अलैकल बलाग, तो आपके ऊपर सिर्फ इतना ये क्या पहुंचा दें, ताकि आपकी पकड़ दाव के आपने बताया नहीं, आप सिर्फ पहुंचा दीजिए। वल्लाहु बसीर बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है, सब पता है अल्लाह ताला कौन क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, दिल में क्या सोच रहा है, जहन में क्या सजावट है, अल्लाह ताला हर चीज को जान रहा है और देख रहा है। आज का दर्स आयत नंबर 20 तक मुकम्मल हो गया। अब हाज़रीन सामीन और नाज़रीन से दरखास्त है कि अगर कोई सवाल इस दर्स के दरमियान में जो दर्स वक्त ना समझ आता हो तो पूछ सकते हैं। यहूदी नसारा पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की लानत होगी जो अपने कब्रों, तो आज जो मुसलमान कब्रों को सजदागाह बना रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़। सवाल ये कि जो हदीस मैंने पढ़ी मर्जुल मौत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि लानत और यहूद व नसारा, अल्लाह ताला यहूद व नसारा पर लानत करे कि तगदु कुबूरहुम मसाजिद, उन्होंने अपने अंबिया के कब्रों को मसाजिद बना दिया। तो आज का मुसलमान अगर इस तरीके से कुछ काम कर रहा है कि कब्रों को मस्जिद, मस्जिद मतलब सजदा करने की जगह, अगर मस्जिद का माना तर्जुमा किया जाए कि मस्जिद का माना क्या होता है, तो सजदा करने की जगह, समझा रहे हैं। तो जैसे मजलिस कहते हैं ना, एक मजलिस बैठी, मजलिस मतलब बैठने की जगह, उसका लफ्जी तर्जुमा है मजलिस का। तो मस्जिद सजदा करने की जगह, अब पूरे रोए जमीन को अल्लाह ने सजदागाह बनाया है ना, अल्लाह के रसूल ने कहा ना पूरी जमीन मस्जिद है। तो अब ऐसे में आज के मुसलमान अगर अब कब्रों को जैसे सजदा कर रहे हैं, सजदागाह बना रहे हैं, तो क्या वो भी उसी हुक्म में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस चीज की वजह से उन पर लानत की है वो चीज तो आज हम भी कर रहे हैं। और शरीयत क्या है कि जो एक तौर तरीका जो बयान कर दिया गया किताब सुन्नत के अंदर, उस पर अगर चलेंगे तो हक पर है, उसके खिलाफ चलेंगे तो हम हक पर नहीं है। तो जो चीजें कुरान में बयान कर दी, कुरान में भी कहा गया है कि वो अंदर मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मा अल्लाहि अहदा, मस्जिद अल्लाह के लिए और अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारो, किसी को ना पुकारो अल्लाह के अलावा। सूरह जिन में अल्लाह ने कहा। तो इसी तरीके से आज का मुसलमान भी आज के जो कब्रों को सजदागाह बना रहा है, सजदा कर रहा है, तो यकीनन वो इसी हुक्म में है जो यहूद नसारा ने अपने नबियों के साथ किया। यहूद नसारा ने अपने नबियों के साथ किया। आप देखिए ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को सऊदी की हुकूमत ने ऐसा घेरा है कि जो ऑफिशियल स्टाफ है उन्हीं को पता है कि सर किधर है, पाँव किधर है, बाकी दीगर किसी को नहीं पता। आप घूम लीजिए, उनको तिनकोनिया बना दिया है, आप सोच ही नहीं पाएंगे कि सर किधर है, पाँव किधर है। ये क्यों गवर्नमेंट ने ये क्यों काम किया?
क्योंकि शुरू में नहीं था। शुरू में लोग जाते थे तो उनकी मिट्टी को ले जाते तबरुक के लिए, कि नबी की कब्र की मिट्टी है तो ये है तो वो है, इस तरह की बेकार चीजें। आप समझा नहीं ना, उन चीजों के बारे में अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो शरीयत में लेकर आया तो उस पर चले, उसके मुताबिक जिंदगी गुजार। उसके बाद वो एक काम कर दिया गया, उसको जब रोक दिया गया तो देखिए हिंदुस्तान में क्या हाल हुआ कि वली के नाम पर, पीर के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर कब्रों को क्या हाल किया हुआ है। देख लीजिए क्या हालात है आज मुसलमानों के, कि मसाजिद में जाने से फितना है, लेकिन इधर जाए कोई फितना नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना औरतों के बारे में कि अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घर जाने से ना रोको, लेकिन ये कह कर रोक दिया जाता है कि नहीं औरतें जाएंगी तो फितना होगा। अच्छा बाजार जाने से फितना नहीं होता। सोचिए आप, ये बहुत कुछ ऐसे सवाल जिससे हमको अपने आप से पूछना चाहिए कि मस्जिद कैसे फितना हो सकता है। सहाबियात जाती थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात जाती थी, आपकी बेटियां जाती थी। तो ये हुक्म यहूद नसारा के लिए तो है, लेकिन अगर उसके तरह हम भी अमल करेंगे तो हम भी इस हुक्म में आएंगे। जैसे हदीस है ना, मन तशब्बा बिकौमिन कौमिन हो, अगर कोई किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा तो उसी कौम में से है। सवाल है, इससे दुआ के रिगार्डिंग बताएं आपने। बहुत सारे स्पेसिफिक दुआ है, तो कोई इंसान अपना हाजत जो है वो अल्लाह से मांग सकता है, जबकि बहुत सा किसी को ज़रूरत होता है। सवाल है कि दुआ के बारे में हर इंसान का अलग परेशानी है, इस बात है हर इंसान के साथ अलग मसाइल है। सवाल ये पूछना चाहते हैं कि आपने हाजत है या अपनी जो परेशानी है हम अल्लाह से मांग सकते हैं। बिल्कुल अल्लाह से मांगना है, हम किससे मांगें, बल्कि आप रो रो के मांगिए। आप अपने नेकियों को वसीला बनाइए। अल्लाह अगर कोई नेकियां मुझे है और तू जानता है कि खालिस तेरे लिए है तो उसके इवज में मेरा ये दुआ कबूल कर ले। देखिए अल्लाह से दुआ हम जायज चीजों के लिए मांगे, नाजायज चीजों के लिए नहीं मांगे। समझा गया, जायज चीजों के लिए हम अल्लाह से दुआ मांगे, गलत चीजों के लिए दुआ कैसे हम मांग सकते हैं, तो कभी नहीं हो सकता। जैसे कुरान जब हम लोग तर्जुमा से पढ़ते हैं तो अल्लाह के लिए वर्ड अंग्रेजी में वी का यूज होता है, वी वी WEV। अल्लाह के लिए जो वर्ड यूज होता है वो यू का वी का वी तो जमा है, वी माने हम लोग हो गया। मतलब तर्जुमा में हम लोग वी इस्तेमाल बार बार वी यूज होता है, WP ना हम लोग का यूज होता है। देखिए जैसे सवाल ये है कि अल्लाह तो वाहिद है, एक है, तन्हा है, अकेला है, तो उसकी तो कोई जमा नहीं हो सकती। इसीलिए बहुत से अंग्रेजी काम जो है, बहुत से अंग्रेजी जुबान की जो महारत रखते हैं उन्होंने भी मना किया कि गॉड का लफ्ज अल्लाह की इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि गॉड का प्लूरल आता है, लेकिन अल्लाह एक ऐसा लफ्ज जिसका प्लूरल जमा नहीं आता है। अगर तर्जुमा में इस तरह की कोई खामी हो, ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं, इसका शरीयत से कोई लेना नहीं है। हम इतना जानते हैं कि अल्लाह एक है, तो हम कभी भी अल्लाह के साथ जमा का मामला नहीं रख सकते। अगर आप लोग चूँकि इस सवाल को महारत रखते हैं और इससे खराबी पैदा हो रही है तो उसको भी हटाकर वाहिद कैसे का इस्तेमाल करिए, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, अगले अपने इसको एक ऑनलाइन का दरखास्त कर देते हैं। आप तमाम सामीन से भी और नाज़रीन जो देख रहे हैं ऑनलाइन में, दरखास्त ये है कि चूँकि जब से दर्स चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से चल रहा है, कोई शक नहीं, हर तरह की इसमें मेहनत शामिल है, हर तरह के अफराद की मेहनत शामिल है। दर्स में ना कभी रुकावट है, ना कभी कोई किसी की दिक्कत है। लेकिन जो पिछले करीब 2-3 महीने से मैं महसूस कर रहा हूँ, ऑनलाइन ठीक है अपनी जगह पे, ऑफलाइन में बहुत कमी है जो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं। हम जानते हैं कि कोई ना कोई काम निकल आया हो तभी हम गैर हाजिर हुए हैं, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि इस दर्स को करने के लिए बहुत मेहनत की जा रही है। अगर आपका कोई काम है तो उसको आगे पीछे आप डिले करें, उस काम को अगले दिन कर दे, सोमवार के दिन या शनिचर को कर दे या दिन में कर दे। लेकिन सामने जो तादाद हम देख रहे हैं ये बहुत चिंताजनक है, अफसोसनाक है। सोचने की ज़रूरत है ये तादाद कम क्यों हो रही है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा कलकत्ता जाने का प्रोग्राम बन गया। मैं 3 महीने देख रहा हूँ, ये आज एक हफ्ते 2 हफ्ते की बात नहीं है। और इसमें एक सबसे बड़ी जो खराबी पैदा हो रही है कि जिम्मेदारी महदूद हो गई किसी 1 2 तीसरे पर, जो सही नहीं है। जो शुरुआत में जो जज्बा था वो देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। और मुझे खदशा ये है कि जो भी बची गई उसमें भी कम ना हो। समझ आ रही है? तो मेरी दरखास्त है, अगर वो लोग जो ऑफलाइन में रहते थे आज ऑनलाइन में है और ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन का इंतज़ाम है तो जाने की ज़रूरत नहीं, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि ऑनलाइन सबसे पहले सिर्फ औरतों के लिए, ऑनलाइन का जो इंतज़ाम किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए, क्योंकि औरतों की यहाँ जगह नहीं है।
साथ ही साथ ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जो इन केस कभी कोई काम पड़ गया और उनको निकलना पड़ गया इमरजेंसी में, तो वो ऑनलाइन का सहारा लेकर दर्स में हाजिर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ देखा ये जा रहा है कि हर कोई अब ऑनलाइन का सहारा लेगा, हर कोई। तो इस पे जानते हैं आगे चल के क्या होगा, एक हम बच जाएंगे और एक आदमी कैमरा को सेटिंग करने के लिए, 2 आदमी काफी है, बाकी लिंक से जो है सब आदमी जुड़ जाएंगे। तो आप मेरी बात को दिल पर ना लें, आपको तकलीफ पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जो सुस्ती हमारे अंदर पैदा हो रही है उसको खत्म कैसे किया जाए। तो इसीलिए अगर कोई काम पड़, हम जानते हैं कि काम ही की वजह से लोग नहीं आ पा रहे, कोई काम पड़ रहा है तो आप उसको डिले करें। जैसे मिसाल के तौर पर शादी ब्याह जो होती है, आजकल शादी का सीजन है ना, तो शादी जिसके यहाँ शादी है तो दावतनामा हमको मिल रहा है, तो क्या उनसे पूछ कर डेट रख रहा है कि 15 तारीख को शादी है, वो हमसे नहीं पूछ रहा है, वो अपने घर में मशवरा करके लड़का लड़की वाले मिलकर एक डेट रख रहे हैं। लेकिन उस शादी में जाने के लिए सारे काम को निपटा के हम जा रहे कि नहीं जा रहे, बताइए, हम जा रहे कि नहीं जा रहे? वो डेट हमारे हिसाब से नहीं है, वो जो रख दिया हमको कबूल है, जाए, बिल्कुल दावत कबूल करना है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। लेकिन उस दावत को जाने के लिए हम अपने सारे काम को निपटा के उसी की मर्जी वाले डेट पर हम हाजिर हो जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये एक मिसाल सिर्फ दी जा रही है, ये तो हमारा प्री प्लान है, वो तो उनका प्लान था जो हमको दे दिया गया और हमको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये दर्स जो है ये तो हमारा प्लान है। और दूसरी बात कि हमको कुर्बानी देनी होगी, अगर काम भी है तो एक दिन छोड़ दें, हम काम को छोड़ दें, क्योंकि आज आपकी मेहनत आज होगी तो कल आपकी नस्लें फायदा उठाएंगी। तो बात याद रखें, आज हम तो कुरान का फायदा उठा रहे हैं, तो हमसे पहले की नस्लों ने मेहनत की है तो हम आज फायदा उठा रहे हैं। तो मेरी ये बड़ी दिल से आपसे दरखास्त और रिक्वेस्ट है कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक ही गिने चुने चेहरे हमेशा रह रहे हैं, अल्लाह ताला इनसे राजी हो, अल्लाह इनसे खुश हो। लेकिन जो तादाद देखते थे वो तादाद अब नहीं पाई जा रही। तो ये कहना बिल्कुल गैर मुनासिब होगा कि इमाम साहब काम पड़ गए थे इसीलिए नहीं आया, हर हफ्ते काम कैसे पड़ जा रहा है, ये सोचना होगा। काम तो अभी हफ्ते में एक दिन है, ये भी बहुत अच्छी बात है, तो रोजाना का मामला नहीं है, हफ्ते में एक दिन रखा गया है, और हफ्ते में एक दिन में भी 1 घंटा, हफ्ते में एक दिन में भी 1 घंटा। तो मेरी आप लोगों से मुअद्दबाना मुखलिसाना इल्तिमास दरखास्त और रिक्वेस्ट है कि आप वक्त निकालें और वो तादाद जो शुरू में आपने दिखाए थे उस तादाद फिर दिखाइए। ऑनलाइन का सहारा बहुत मजबूरी में आप लीजिए, लिंक का सहारा मजबूरी में लीजिए। ऑनलाइन जो लिंक है वो सिर्फ खवातीन के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। मर्दों में भी उन लोगों के लिए जो आउट ऑफ स्टेट है या आउट ऑफ सिटी है, बाहर काम कर रहे नहीं आ पाते, उनके लिए है। लेकिन जो करीब में है आप आने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम दर्द में मुकम्मल तरीके पर बराबर शरीक रहें। अल्लाह हमारी नेकी को कबूल करे और हमारे गुनाह और खामियों को हमसे दरगुजर कर दे। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।